نے ایک اسکواڈ بنایا ہے ابھی جو UAE میں ٹرائی سیریز ہو رہی ہے اور ایشیا کپ، اس میں ہم نے 17 پلیئرس کا اسکواڈ بنایا ہے، کیونکہ ایشیا کپ مینجمنٹ کی طرف سے بھی 17 پلیئرس کی پروویژن ہے کہ ہم کین ہیو 17 پلیئر اسکواڈ. So names are Saim Ayub, صاحبزادہ فرحان، فخر زمان. اوکے، سائم ایوب، صاحبزادہ فرحان، فخر زمان، سلمان علی آغا کیپٹن ہے، حسن نواز، محمد حارث، حسین طلت، محمد نواز، فہیم اشرف، شہین شاہ افریدی، حارث رؤف، سلمان مرزا، حسن علی، سفیان مقیم، ابرار احمد، خوش دل شاہ اینڈ محمد وسیم جونیئر. تھینک یو. کے ساتھ گروپ میں شیئر ہوئے سارے جی کوشچن آنسر سیشن ہم لوگ ساتھ ہیں. My question for Mike Hasan, we lost the T20 series against Bangladesh and ODI series from West Indies. Bangladesh 10th ranking team in T20s and West Indies 9th ranked team in ODIs. Do you think this type of performance we will beat the top ranking team, especially in upcoming event Asia Cup and World Cup? Look, I'll answer your question from a T20 perspective. We won 6 of our last 9 games. Of the 3 that we lost 1 off the last ball. We lost 1 by a handful of runs, and we got 1 where we lost badly. So out of 8 games, we're in a position to win all 8 out of 9. So from a T20 perspective, this side is travelling quite nicely. The ODI is a different question, and that'll be answered at a different time. But from a T20 perspective, the side's travelling well. We've also been able to provide some different opportunities for different players during those tours, and that's the only way we're going to create depth. So the likes of Salman Mirza has been added to the squad because of his performance in Bangladesh, whereas if we continued to play the same team all the time, we wouldn't be able to create depth. So it's always a fine line in terms of trying to win every single game, and also making sure that you peak for pinnacle events like the Asia Cup, and that's certainly what we're looking to do. ریکویسٹ آپ سے یہ صرف اس سیریز ایشیا کپ اور اس کے کوشچنز کریے گا، باقی جو ہے وہ بعد میں. From Ritwik, coach, recently we lost ODI series against West Indies, but if we look at the Champions Trophy performance, so we can't see any kind of difference in performance, especially in batting approach, bowling performance, and as well as like ODI template. As we have got a template in the T20 since you came here, and we have seen a lot of changes in the T20 team, and now we are consistent. Yes, I mean, and that's what the focus here is, T20. Obviously we have a tri-series and an Asia Cup to win for Pakistan, so our focus is very much on that. I've been here for 9 games. As I said, we've won 6 of those. 2 of the other 3 we've gone down to the last ball. So our T20 side is performing well, so we have to make sure we look at those in isolation. And that side is building depth, and for us to compete at this level, then obviously we have to create some depth. And I'm certainly pleased that we had options when we had our discussions. ایک میرا آپ سے کویشچن ہے، ہمیشہ جب بھی ٹیم اناؤنسمنٹ ہوتی ہے 2 پلیئرس کا نام لیا جاتا ہے، اسپیکولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آپ کو سلیکشن کمیٹی اور ٹیم مینجمنٹ کلیئر ہے فیوچر کے لیے 2026 کے ورلڈ کپ کو ذہن میں رکھ کے کہ اب ہمیں اسی نیوکلس کے ساتھ آگے چلنا ہے؟ دیکھیں، جو پچھلی 3 سیریز ہوئی ہیں اس کے اندر جو پلیئرز کھیل رہے ہیں ان کی زیادہ تر انہیں کی کنٹینیوٹی ہے، اور آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ نے جس طرح کی انوائرمنٹ ہے، جس طرح کی کرکٹ ہوگی، اس میں جو پلیئرز فٹ ان ہوتے ہیں اس طرح کی آپ نے اسکواڈ بنانی ہے. تو آئی تھنک یہ وہ 3 سیریز سے آلموسٹ سملر گروپ ہے جو کھیل رہا ہے، اور ویری ہوپ فل کہ جس طرح سے پروگرس کر رہے ہیں پلیئرز
हसन नवाज़ की जिस तरह परफॉर्मेंस आई है, इस तरह से साहिब इज़ वेरी टैलेंटेड, फ़ख्र है, साहबज़ादा ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे के हर स्टेज के ऊपर अपने आप को साबित किया है कि वो एक अच्छी प्रोडक्ट है T20 के हवाले से। आगे भाई आपसे ये सवाल है कि क्या आप ये कंटिन्यूटी फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी ये टीम बना रहे हैं या आगे कंडीशंस आपने कहा कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और हम देखते हैं कि टॉप ऑर्डर में कोई भी जो है वो सीधे बल्ले से खेलने वाला नहीं है, जब टीम फंसती है तो एकदम से फंस जाती है। देखिए उसमें अगर आपने T20 में सीधे बल्ले से खेलना है तो फिर आपको T20 तो खेलना नहीं चाहिए। बात यह है कि T20 में आपको ये देखना है कि आप जिस कंडीशन में खेल रहे हैं उसके मुताबिक आपकी जो बैटिंग लाइनअप है वो सूटेबल है या नहीं है। जिस तरह से साइम है, साइम अभी उसने कुछ 1 साल से उसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो ज़बरदस्त उसकी प्रोग्रेस चल रही है। फ़ख्र ज़बान इज़ योर लाइक आई थिंक वाइट बॉल में सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। साहबज़ादा ने जिस तरह परफॉर्म किया है, 2 ही चीज़ें आपको एक बेहतर बैट्समैन बना सकती हैं, एक आपकी एवरेज रन स्कोर और दूसरा आपका स्ट्राइक रेट। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप देखें तो साहबज़ादा से बेहतर ऑप्शन आपको क्या मिल सकती है जिस तरह वो परफॉर्म करके आया और परफॉर्म कर रहा है। फ़ख्र ज़मान के ऊपर हमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। साइम अयूब जिस तरह से यंग प्लेयर आया है उसने इम्पैक्ट डाला है। सो आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं हमारी और इसी के ऊपर हम इनको बैक करेंगे। मेरा आपसे और माइक हेसन से क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बाबर आजम रीसेंट परफॉर्मेंस इन स्पेशली इन ODI फॉर्मेट? डू यू थिंक दैट बाबर आजम इज लैकिंग कॉन्फिडेंस एंड डू यू बिलीव दैट ही इज ओनली प्ले फॉर ODI फॉर्मेट और यू थिंक दैट he can be considered in future for T20 format as well? Yeah, look, I mean, I think it's very harsh to challenge a player on their form on 3 games. I mean, Bubba played nicely in the first ODI, missed out in the next 2, but we know what a fine player he is. There's no doubt that Bubba's been asked to improve in some areas around, taking on spin and in terms of his strike rate. Those are things that I know he's working very hard on, but at the moment, the players that we have performed exceptionally well. I mean, we talk about Sabzada Farhan. He's played 6 games. He's had 3 man of the matches. So you want players, when they score runs, they have a huge impact on the outcome of the game in a positive way, and that's certainly what we ask. Syme's the same, Fuck is the same. So you're talking about 3 guys that, deserve to be there. And that's, but yeah, certainly, a player like a player like Bubba has an opportunity to play in the BBL and start to show that he's improving in those areas in T20s. And he's too good a player for us not to consider. Hello, Mike. This is Ramaswamy from Pakistan. Just want to know if you have been a part of the tour of Bangladesh and the West Indies series. What are the things that you think our team is lacking in the batting order? And secondly, my question regarding Hassan Ali selection. Why is he is not considered for these Asia Cup and Press? Who did you say, Hassan? Hassan Ali. Hassan Ali is in the squad. What about Pakistan performance in the batting? What do you think we are lacking? Look, I think we were challenged with 3 different surfaces, weren't we? I mean, in Lahore, those surfaces were flat and the batting excelled. We went to Bangladesh where they were incredibly challenging and low-scoring games. But I thought the way that we got ourselves out of trouble in a couple of games, having lost early wickets, sort of showed that the ability to have depth helped us in those low-scoring games. But our top order sets the game up, and we know all the games that we won. Our top order performed really well. I guess the 3rd game of the West Indies series, our openers put on 140. Sabzada and Syme Ayub. So we need more of that, but we need it at a run rate that gets us well ahead of the game, and that's certainly what happened in that game. So look, I mean, T20 is all about setting the game up and being ahead of the game all the time in case you get yourself out. And from a batting point of view, I think we've got a line-up that can continue to do that. मेरा प्रश्न आपसे है कि
हमेशा बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ऑटोमेटिक चॉइस रहे हैं पाकिस्तान टीम के लिए, लेकिन एशिया कप में तो सिलेक्ट नहीं किया गया। क्या वेस्ट इंडीज की जो परफॉर्मेंस थी उनकी इतनी बेहतर नहीं थी, क्या उसको मद्देनजर रखते हुए एशिया कप में उनको सिलेक्ट नहीं किया गया या पहले से प्लान आपके बारे में? देखिए अभी लास्ट वो जो खेले हैं वो तो ओडीआई मैचेस खेले हैं, उससे पहले जो 3 सीरीज़ हुई हैं वेस्ट इंडीज़ की, बांग्लादेश होम एंड अवे, तो उसमें भी आपके जो ओपनर्स थे वो आपके साहिब था, फ़खर था, साहबजादा था। सो आई थिंक कोई ऐसी तो नहीं है कि 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस में किसी को आप इग्नोर कर दें या किसी को कंसीडर कर लें। और ये आई नो कि ये चीज़ें काफ़ी लोगों में मीडिया में भी चलती हैं। आप एज प्लेयर आपके डिफरेंट टाइम्स के ऊपर डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं। एवरीवन जो भी खेलना चाह रहा है, कर रहा है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। 2 चीज़ें जो T20 में हाईलाइट मैंने पहले भी की हैं, आपकी रन्स की जो एबिलिटी है, उसका स्ट्राइक रेट अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट जो आपको दिया जाता है जिस फेज़ में खेलते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा आगे भाई, हम बहुत एक लाइन में कह सकते हैं कि रिजवान और बाबर अब T20 सिलेक्शन में इतने आप कंसीडर नहीं करेंगे और सिर्फ नए टैलेंट को मौका देंगे? ये नहीं कह सकते कि हम उनको बिल्कुल जो है वो राइट ऑफ कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो इस तरह की हैं कि आप जैसे एक प्लेयर है वो किस तरह से डेवलप होता है। साहबजादा की आप मिसाल मैंने पहले दी है, साइम की दी है, फ़खर की दी है। तो ये किसी के लिए भी अगर आप देखें तो साहबजादा ने भी एक कम बैक किया है क्रिकेट में पाकिस्तानी टीम में। तो इसी तरह से साइम भी शुरू में भी खेला था T20, फिर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई, फिर उसने इम्पैक्ट डाला। तो किसी प्लेयर के लिए कोई भी इंसान जो है वो ये फुल स्टॉप तो नहीं लगा सकता है ना। अपॉर्चुनिटीज़ देयर, अभी उनके भी बिग बैश में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और लीग्स में हो रहे हैं, PSL इज़ देयर। जो प्लेयर परफॉर्म करेगा वही खेलेगा और उसी को खेलना चाहिए। आगे मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के जो टीम्स का स्क्वाड किया दौरे करने उनमें से किसी को कंसीडर नहीं किया गया यासिर खान है, काफी हैं, और उसके अलावा एक खिलाड़ी अचानक से पाकिस्तानी टीम में आते हैं, बैक लिमिट्स खेलते हैं, उस्मान खान, अब वो शहीद में नहीं है, टीम का कोई हिस्सा नहीं है, उनके हवाले से क्या है? देखिए वो अभी हमारे जो टॉप प्लेयर्स का हमारा कैंप था 1.5-2 महीने NC में रहे। अभी आपने देखना ये है कि जैसे शाहीन की आपने बात की, कुछ शाहीन के जो प्लेयर्स हैं वहाँ से कोई नहीं आया। सो आई थिंक मोहम्मद वसीम जूनियर उनको वहाँ भेजा, इज़ गेटिंग फिट, बॉलिंग वेल, तो उनको शामिल किया है। आपने देखना है कि आपके पास कितनी स्लॉट्स हैं। अगर आपके पास साइम है, फ़खर है, साहबजादा है, तो फिर आप ज़बरदस्ती आप 17 ही प्लेयर लेके जाएंगे, आप कोई 20 तो लेके नहीं जा सकते। तो जहाँ अपॉर्चुनिटी होगी, और अच्छी चीज़ ये है कि हमारे पास चॉइसेस बेहतर आ रही हैं, यासिर है, नईम है, नाफे है, तो आपके पास चॉइसेस होना इट्स अ गुड साइन। तो ये नहीं है कि आप 17 प्लेयर ही लेके जाएंगे ना, सारे तो नहीं ले जाएंगे। भाई बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स पर रिलाई किया जा रहा है। पहले जब आप क्रिकेट खेलते थे तो स्पेशलिस्ट का दौर होता था और स्पेशलिस्ट परफॉर्म भी करते थे। ऑलराउंडर इतने टीम में डाल दिया जाता है कि उनको यही समझ नहीं आती कि उसने बॉलिंग करनी है या बैटिंग करनी है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सबको मौका दे रहा है कि बैक काम कर रहे हैं कि हमारी टीम बन नहीं पा रही है, प्लेयर तो सभी आगे पीछे रहा, तो कोई नहीं गया जिसको नहीं खिलाया। तो अब प्लेयर्स को ही परफॉर्म करना है। आप समझते हैं कि प्लेयर्स को भी कुछ करके दिखाना पड़ेगा, कितना ट्रस्ट करेंगे? और ये ऑलराउंडर जो जवाब है वो भी आपने देखा। देखिए 2 चीज़ों को हम ना मिक्स कर लेते हैं। अभी जो सारी आपकी ज़्यादातर थॉट्स हैं वो ODI को लेके ज़्यादा हैं। T20 के लिए चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। इवेंचुअली अगर आप देखें तो एक सिलेक्टर्स हैं, फिर आपकी एक मैनेजमेंट है, उसमें हेड कोच है, कोचेस हैं। आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? उनको उनकी परफॉर्मेंस करें, उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए एक इन्वायरमेंट ऐसा बना सकते हैं जिसमें अच्छा वो ट्रेंड हो। एंड ऑफ द डे परफॉर्म तो प्लेयर नहीं करना है। तो दूसरा जो ऑलराउंडर्स की बात कर रहे हैं,
आपने कहा आपके दौर में तो हमने we never played T20 cricket. This is a new format. तो I think T20 स्क्वाड अगर मेरे से पूछे तो ये 17 के जो स्क्वाड है आई एम वेरी होपफुल और इसमें टैलेंट भी है, चॉइसेस भी हैं और गुड टू गो। सारी सबकी नजरें जो है ना वो 14 सितंबर को एक मैच होने जा रहा है हाई वोल्टेज। क्या आप समझते हैं कि ये जो 6 मैच की सीरीज है ये गेयर अप होगी और 14 सितंबर का मार्का हक के बाद ये टीम जो है इस पोजीशन में है कि हम इंडिया को वहाँ पर धूल चढ़ा दें? बिल्कुल है, क्योंकि हम चाहे या ना चाहे इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो दुनिया का क्रिकेट में सबसे बड़ा मैच है और ये हर प्लेयर को भी एहसास होता है, हर इंसान को एहसास होता है जो इन्वॉल्व होता है। सो आई थिंक ये जो 17 स्क्वाड है इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि ये किसी भी टीम को हरा सकती है एंड वेरी होपफुल और चीज़ें चेंज होती रहती हैं। यू सी कि इस दफ़ा आप भी तैयारी पकड़े, हम भी पकड़ते हैं, प्लेयर भी रेडी हैं, वो सबको एहसास है कि ये कितना बड़ा मैच है और किस तरह के आजकल इन हालात चल रहे हैं। तो ये भी नहीं कि उनके ऊपर कोई ज़्यादा प्रेशर डालने की भी ज़रूरत नहीं है, बट आई एम वेरी होपफुल। अस्सलाम वालेकुम आपकी भाई आते भी आपने यार जो परफॉर्म करेगा वो ही खेलेगा, लेकिन अगर हालिया परफॉर्मेंस मोहम्मद हारिस विकेट की प्रति देख लें इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही, वो विकेट कीपिंग में कैच ड्रॉप कर रहे हैं, बैटिंग में इस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हम बैक हैंड पे दूसरा विकेट पर क्यों नहीं तैयार कर रहे? जब सरफराज थे वही खेलते थे, बैक हैंड पे नजर नहीं आ रहा था, रिजवान थे वही नजर आ रहे थे, अब हारिस साहब वही नजर आ रहे हैं, बैक हैंड पे दूसरा विकेट पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन उसमें बैक एंड पे भी शाइन्स में हम कीपर्स को तैयार कर रहे हैं, लेकिन आप जो होता है ना आपकी जो हारिस की हम कहते हैं परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, बट ये जो आप 3 सीरीज़ हुई हैं उसके अंदर अगर आप उसके नंबर्स को गौर से देखें तो उसका 171 का स्ट्राइक रेट है और उसकी जो एवरेज बनती है वो 29 पॉइंट समथिंग बनती है। तो एक किसी भी जो ऑलराउंडर ही उसको कहते हैं ना कीपर बैट्समैन, तो अगर आपको वो 171 का स्ट्राइक रेट दे रहा है फ्रॉम लास्ट 3 सीरीज़ और 29-30 की उसकी एवरेज है पर इनिंग स्कोर की, तो और हम उससे क्या एक्सपेक्ट करें? आई थिंक ही हैज़ डन रियली वेल। आपकी बात का आपकी गुफ्तगू से ये महसूस हो रहा है कि जैसे रिजवान और बाबर आइंदा T20 टीम में नहीं। अच्छा, ये तो हकीकत है कि बाबर और रिजवान बड़े खिलाड़ी रहे हैं थे, आजकल उन पर डाउनफॉल आया है। जिस तरीके से वो आउट हुए हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ रिजवान, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो डिस्टर्ब है। तो आप एज बड़ा स्पोर्ट्समैन, एज ए सिलेक्टर, क्या आपने उनको बुलाकर एतमाद दिया है कि भाई अब आप ऐसे करें कि ज़रा आप पे डाउनफॉल आया हुआ तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें या थोड़ा रेस्ट कर लें, आप हमारे लिए एहसास है? देखिए, मैं तो पहली बात पे एग्री नहीं करता कि जी मेरी बातों से आपको लग रहा है कि रिजवान और बाबर कभी T20 नहीं खेलेंगे। आप भी यहाँ, मैं भी इधर हूँ, अगर वो जिस तरह से बाकी प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं उस तरह के करेंगे तो वो डेफिनेटली खेलेंगे। और दूसरी ये कि अभी भी आप देखें तो बाबर NCA के अंदर तब से प्रैक्टिस करता है, वो जो कैंप लगे थे उसमें भी माइक ने अरेंज किए थे कैंप्स, उसमें बाबर भी था, रिजवान भी था, उनके साथ डिस्कशन भी होती रही हैं। एक चीज़ उनको गाइडलाइंस भी है कि आपने इस तरह से कुछ चीज़ें हैं उनको आप इस तरह से बेहतर करें। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है किसी को। एट टाइम्स आपकी ऑप्शन अच्छी आपको मिल जाती हैं। मैं कह रहा हूँ कि साहब ज़्यादा हमारे पास नहीं था 6 महीने पहले जो अभी उसने परफॉर्म किया और आके जिस तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं। I coach, my question is from you. In coming series, in Crisis and Asian Cup, we will face one of the best spinning side and there are 2-1 slow pitches. So do you think we are ready to face them, and that would be a very good opportunity for our players to prepare for the T20 World Cup? Yes, it will, and the fact we're playing in Sharjah, which will be the most challenging conditions for facing spin. So look, we're aware of that, and that's why your middle order is so critical, that not only can they rotate against spin, but they also can apply pressure. And that's going to be a big challenge.
You know, Afghanistan, you know, semi-finalists in the World Cup, you know, they are a top side, let alone when you play them in Sharjah. So we're certainly not taking any of those games lightly, but in terms of preparation for the Asia Cup, we couldn't wish for anything better. अच्छा कि मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो टीम सेट हुई है क्या ये कप्तान से मुशावरत की गई है इसमें और दूसरा आप ये बताइए कि जब टीम हारती है तो सिलेक्शन के ऊपर डिबेट शुरू हो जाती है कहा जाता है कि देखें जी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को मौका नहीं दिया गया इसलिए रिजल्ट है तो क्या आप समझते हैं कि उनको ट्राई नेशन सीरीज के अंदर एक मौका दे दिया था अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको आगे एशिया कप में मौका दिया था अगर ना करते तो उनको एशिया कप से ड्रॉप कर दिया जाता इसका क्रिटिसाइज होता आपके ऊपर उसका प्रेशर नहीं होता देखिए आपने कहा कि जी कप्तान से पूछा, डेफिनेटली हम कोई ऐसी टीम नहीं बनाते जिससे कप्तान से नहीं पूछते। एंड ऑफ द डे यू नो ही इज़ द मेन गाय जिसने अंदर जाके टीम को लड़ाना होता है। तो कोच है, कप्तान है, हमारी सिलेक्शन टीम है, सब मिल के, और कोशिश हमारी क्या है कि एक बेहतर जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें से बेस्ट टीम बनाई जाए। दूसरा सवाल, आई डोंट नो वो आप मेरे क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं या बाबर और रिजवान के चांसेस की बात कर रहे हैं। आई थिंक क्रिटिसिज्म की, देखिए आपको जिस तरह की आप जॉब करते हैं उस तरह की क्रिटिसिज्म भी आती है। तो क्रिटिसिज्म तो होना चाहिए। अगर आप जो बात करते हैं ना कि दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा क्रिकेट में कौन सा मैच होता है, वो होता है पाकिस्तान एंड इंडिया। वो क्यों अच्छा है कि हर बंदा उसमें इंटरेस्ट लेता है, प्लेयर्स खेलते हैं, प्रेशर आता है, उनको पता है अच्छा किया तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होंगे, अगर बुरा किया तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ होंगे। तो हमारी भी जॉब ऐसी है, आप मीडिया से हैं, आपने अपना काम करना है, हम एज प्रोफेशनल अपना काम करना है। मुझे कभी ऐसा भी नहीं आपने सुना होगा कि जी मुझे कोई प्रॉब्लम है किसी की क्रिटिसिज्म से। आपका हक है और आपको करना चाहिए। Coach Aaron is talking about, I think that we are struggling in the top order. You know that it's a reality, but we've seen some horrible performance in the death overs, especially in the Bas series. What was your planning in the Bas series to the Pacers? And either Rizwan miscalculated the overs because there was some criticism that Rizwan completed the full work of some other spinners. Oh, look, once again, I'll talk about T20 because that's what we're here for. I mean, in terms of the death overs in T20, we closed out the 2 matches against the West Indies when we were under pressure at the death. So Harris Ralph bowled an outstanding over. Hassan Ali came back nicely. Shaheen in the first game that we won bowled beautifully at the death. So, you know, we're creating some skills there. And, you know, when we get put under pressure in ODIs, it's obviously over a longer period of time, and that's something that we need to work at. But in terms of T20s, the players that I've just discussed, Salman Mirza is probably one of the best death bowlers that we have. You know, his ability to go over and around the wicket and bowl wide of the stumps, wide hole, is a great skill to have. And Mohammad Wasim Jr., especially if there's reverse swing in Dubai, is probably the best death bowler in Pakistan. So, you know, we've created some depth and we've also created some options within that squad. Thank you very much.